Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. So today date is 9 January 2021 and I am teaching you chapter number 6 and name of the chapter is Natural Calamities. So let's do little recapitulation what we have done in our previous videos. So student, in the previous video I explained you about natural calamities. So what is it? It is an event that occurs naturally and it is not control of humans. Sudden change in the surrounding which causes damage to human beings also and their properties. And some of the natural calamities which we discuss in this chapter are flood, drought, earthquake and tsunami. So let's do little recapitulation in a very, so I will do a quick recapitulation of the previous topics, that is flood. So during monsoon season, what happens? There is lot of rainfall, and what happens at the time of monsoon season? When there is heavy rainfall, the amount of water increases in the river, and these river water overflow from the river and submerge the surrounding area. So this condition is known as flood. So this condition is known as flood. And after that we have also discussed what are the causes of the flood, that is cutting of the trees, which is known as deforestation. So deforestation is also the cause of a flood. Another reason is building of dam. This is also the reason for floods, because we build dams on the river when, and the monsoon season, when there is excess of rainfall, at that time the extra water is stored in the dam, and this water is used for different purpose, for cultivation also, for making the electricity also, and many other activities also. After that we discuss what are the precautions we should take at the time of a flood and how we can control the floods. We can control the floods by planting more and more trees. We can control the floods by planting more and more trees, not allowing constructions of the houses near the river bank. Okay, but floods are also
very good for the farmers, but because it increase the fertility of the soil also. It increase the floods, make soil more fertile. And after that, natural calamity which I explained you, that is a drought. When a particular area does not receive a rainfall for a long period of time, and there is a scarcity of a water due to hot weather, then we say that that area is affected by the drought. And after that, we discuss what are the causes of the drought. That is location. Maybe that area is very far away from the natural sources of water like lake, river, sea, oceans. And another reason is again the same which we have discussed in the floods also, that is cutting of a trees. This is also the reason for the drought. After that, we discuss what are the effects of the drought. So at the time of drought, what happens? Student, all the ponds, lakes, rivers dry up, and even there is no drinking water for the animals and human beings. And due to no rainfall, the crops also die, and there is no fodder for the cattle also. And this give us, due to this, what's happened? Animals स्ट्रेब मीन्स भूखे रहते हैं. जब खाने को नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे एनिमल्स. उससे क्या होगा? दे आल्सो डाई ड्यू टू दिस. एंड इवन ड्यू टू ड्रॉट वी कांट ग्रो न्यू क्रॉप्स बिकॉज सॉइल बिकम्स वेरी ड्राई. एंड अनदर इज the nation also suffered due to the drought because the prices of the vegetables and other fruits that increase, and even the prices of other commodities also increase at the time of flood. And how we can control it? We can control at the time of prices of the commodities increases at the time of drought. And how we can control it? Again the same thing, we can control it by planting more and more trees. And planting of trees is known as afforestation. Planting of trees is known as afforestation. So this you can do it. And another, encourage the people to make water harvesting plant so that they can increase the level of the underground water. And this underground water can be used for the irrigations at the time of cultivation. After that, I am explaining you. Now let's start with earthquake also. So shaking of the earth, that is called it an earthquake. Now let's understand what are the so student,
To better understand what is the reason for the earthquake, first of all let understand the different layers of the earth also. देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि अर्थक्वेक इज वेरी डेंजरस. जब लैंड एकाएक अर्थ का सरफेस जब शेक करने लगता है, हिलने लगता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, इवन लाइफ का भी. बहुत से लोग मर जाते हैं अर्थक्वेक में. इज इट क्लियर? और वी कैन मेजर द अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल होता, उस पर हम लोग मेजर करते हैं कि कितना अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, किस पे? रिक्टर स्केल पे. सो इससे क्या होता है, एकाएक जब अर्थ जो है शेक करने लगती है, हिलने लगती है, तो बहुत से जो अर्थ के सरफेस पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बहुत लोग दब के मर जाते हैं. आप लोग ने देखा होगा बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, जिस जो रोड ट्रांसपोर्ट में भी आपको मिलेंगे, मींस लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. सो ये सब भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, रोड्स ब्रेक हो जाते हैं. ये जो अर्थक्वेक है, इससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है अर्थक्वेक से. तो एक थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूं आपको. देखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the layers of the earth. Okay, see this layer earth में देखो, सबसे पहले this is the layer of the earth, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट. CRUST, क्रस्ट बोलते हैं. सी सो वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये तो हम सबको पता है. हम लोग कहाँ रहते हैं बेटा? हम सब अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं. और अर्थ का सरफेस क्या सब जगह एक जैसा है? तो आंसर है नो. समवेयर वी फाइंड द माउंटेन्स, समवेयर वी फाइंड हिल्स. कहीं पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, कहीं प्लेन देखने को मिलेगा, कहीं प्लेट्यूज है, तो कहीं वाटर बॉडीज हैं. दिस आर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी. अब देखो, जो सरफेस पे हम रह रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया बसी है, लैंड, उस पोर्शन को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जिस पे पूरी दुनिया बसी है. जिस लैंड पे सारे इतने कंट्रीज या इतने लोग रह रहे हैं, दैट इज नोन एज क्रस्ट. क्रस्ट के बाद जो सेकंड लेयर है, द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ, इसे हम बोलते हैं मेंटल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल. ये क्या? रॉक से बनी है. ठीक है, चट्टाने हैं इस लेयर में. सबसे ऊपर आपकी क्रस्ट है, जिसपे पूरी दुनिया बसी है. उसके अंदर जो सेकंड लेयर है अर्थ की, वो किससे बनी है? रॉक से. ओके. आफ्टर दैट द थर्ड लेयर जो आपकी, अब ये थर्ड लेयर आ गई, इसे हम लोग बोलते हैं आउटर कोर. इसको हम लोग बोलते हैं आउटर कोर बोलते हैं. ठीक है. और जो आपकी सबसे अंदर वाली जो लेयर है अर्थ की, इसे हम लोग बोलते हैं इनर कोर बोलते हैं. इज इट क्लियर? इसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं. अब देखो, इन्हीं को समझना है. देन यू आर, बिकॉज ऑल द रीजन ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू दिस टू कोर्स, दैट इज इनर एंड आउटर. ठीक है. इनर और आउटर कोर्स के अंदर जो हलचल हो रही है, दैट इज द रीजन फॉर द अर्थक्वेक. दैट इज द रीजन फॉर द अर्थक्वेक. यही अर्थक्वेक के मेन रीजन यही है. दिस इज द मेन रीजन फॉर द अर्थक्वेक. नाउ सी व्हाट हैपन. जो इनर कोर है, जो अर्थ की, द इनर कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है, और ये सबसे हार्ड कोर है जो इनर है. देखो, अब 4 कोर्स आ गई, एक बार समझ लो. इनर, आफ्टर दैट आउटर, देन मेंटल, और सबसे फर्स्ट लेयर जिसपे हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया बसी है, दैट इज नोन एज क्रस्ट. दैट इज नोन एज क्रस्ट. सो स्टूडेंट, दिस इनर कोर इज वेरी हार्ड. इनर कोर बहुत हार्ड है, और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है. इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है. उसके बाद फिर
और जो आपके जो भी अर्थक्वेक का जो रीजन है, दैट रीजन अराइजेस फ्रॉम द इनर एंड आउटर कोर। ये हमेशा याद रखना, अर्थक्वेक आने का रीजन इनर और आउटर कोर है, ठीक है। अब ये जो सेकंड है, ये आउटर कोर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड। ये आउटर कोर जो है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड। हियर आल्सो द टेम्परेचर इज सो हाई, द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द मेटल्स एंड रॉक, जो चट्टाने हैं, जैसे देखो सेकंड जो मेंटल है ये चट्टानों से बनी है। अब यहाँ इतना हाई टेम्परेचर है कि जितनी भी चट्टाने रॉक्स हैं ये भी लिक्विड फॉर्म में, और जितने भी मेटल्स, मेटल हमें जितने मिलते हैं अर्थ के अंदर से ही हम उन लोग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये और आपकी ये वाली लेयर इतनी ज़्यादा हार्ड है, अरे इतनी ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर है कि ऑल द मेटल्स एंड रॉक, जो चट्टाने हैं, दे आर इन द लिक्विड फॉर्म। अब ये लिक्विड फॉर्म है। अब इस आउटर लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, मेंटल। तो ये लिक्विड फॉर्म में लावा है पूरा, ठीक है। जैसे पानी उबलता है, बुलबुले निकलते रहते हैं ना, ठीक है। तो इन द सेम मैनर जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। अब ये जो आपकी सेकंड लेयर थी, ये क्या थी, मेंटल की, ये रॉक्स की है। और पहली लेयर जो क्रस्ट है, जो लैंड पार्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, वो क्या है, क्रस्ट। अब देखो बेटा क्या होता है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ भी टेम्परेचर बहुत हाई है, ये सबसे हार्ड है, इनर कोर ये हार्ड है। और ये जो आउटर कोर है, यहाँ चीजें क्या लिक्विड फॉर्म में है, लावा है, लावा बिल्कुल लावा की तरह है। तो व्हेन ये लावा जब इतना हीट हो जाता है तो ये मेंटल लेयर से होते हुए क्रस्ट में चला जाता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब ये जो लावा है जो उबल रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या बताया, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये मेंटल कोर में जो चट्टानों से बनी हुई है, उसके बाद ये अर्थ क्रस्ट को भी टच कर देता है, और यहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। इज इट क्लियर। यहाँ पे ये जाके क्या होता है, कूल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी इनर कोर और आउटर कोर, यहाँ टेम्परेचर हाई है, यहाँ अर्थ क्रस्ट पे जाते जाते टेम्परेचर क्या है, यहाँ टेम्परेचर हाई नहीं है। तो जब इतना उबलता हुआ लावा जब ये मेंटल की लेयर को टच करते हुए जब अर्थ क्रस्ट तक पहुंचता है, देन एट दैट टाइम इट कूल्स डाउन, और ये फिर नीचे आने लगता है, डाउन आ जाता है। ये कूल होके फिर यही प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहती है। और ये जो कन्वेंशन करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो अब ये क्या है, ये टेम्परेचर क्या बहुत इंक्रीज, अब ये जा रहा है मेंटल को टच के अर्थ क्रस्ट पे जब जाता है तो यहाँ टेम्परेचर लेस है, यहाँ पे ये कूल होता है, फिर लावा जो आप लोग का डाउन आ जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहती है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस होती रहती है। तो द मेन थिंग यू विल अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज ए हार्ड कोर। अब ये लिक्विड फॉर्म में है आउटर कोर, इसका मतलब जो मेंटल है, मेंटल की जो लेयर है ये इसके ऊपर तैर रही है, मूव कर रही है, और मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट है आपकी, तो वो भी स्लोली स्लोली मूव कर रही है, क्योंकि ये जो आउटर लेयर है ये लिक्विड फॉर्म में, ये आउटर लेयर क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तो इसके ऊपर जो मेंटल की लेयर है वो भी मूव कर रही है, और मेंटल के ऊपर क्रस्ट है तो ये भी मूव कर रही है। अब देखो यही क्या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये सारी, जैसे देखो ये पूरी जो ऊपर अर्थ क्रस्ट वाली जो प्लेट्स है, ये कोई एक सिंगल प्लेट्स नहीं है। इज इट क्लियर, ये सिंगल प्लेट नहीं है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं। तो जब ये मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर है, तो जब इनकी मूवमेंट हो रही है तो ये अलग अलग प्लेट्स हैं, तो यही प्लेट्स जब आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है, व्हेन दीज प्लेट्स जब या तो ये रब करती हैं, एक दूसरे से रगड़ा रही हैं, ठीक है, या तो ये एक दूसरे से रगड़ा रही हैं, या कभी ये आपस में एक दूसरे को टच करके टक्कर हो जाती है इनमें, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मे बी जैसे ये दो प्लेट्स हैं, ये ऐसे मान लो टकराई,
ठीक है। तो हो सकता है एक प्लेट नीचे हो गई, ये जरा सी ऊपर हो गई उसके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्वेंशन करंट, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एकाएक एनर्जी रिलीज होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट्स एक दूसरे से मूव करती करती दूर भी हो जाती हैं। इज इट क्लियर? पर ये चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, बहुत स्लो होती हैं मूवमेंट जो इसकी होती है। तो समटाइम ये क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर भी चली जाती हैं। तो अब ये जो प्लेट्स है, मैंने क्या बोला, सिंगल प्लेट नहीं है, कई प्लेट्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो इनर कोर आउटर कोर में हाई टेम्परेचर है, और ये क्या है, आउटर कोर इज इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म होने के कारण इसके ऊपर मेंटल है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है। तो लिक्विड है इसलिए इसकी मूवमेंट हो रही है। लिक्विड होने के कारण वो लिक्विड के ऊपर ही है ना मेंटल कोर और क्रस्ट, तो ये भी स्लोली स्लोली मूव कर रही है। और मैंने आपको बताया कि क्रस्ट एक सिंगल प्लेट नहीं है, कई प्लेट हैं, जिनको हम लोग, इन्हीं को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब ये कभी कभी आपस में रगड़ा जाती हैं, रब हो जाती हैं, ठीक है, या तो एक दूसरे से टकरा गई, या कभी कभी ये डिस्टेंस दूर में भी चली जाती हैं। तो इसी समय जो एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। वो इतनी एक्सेस एनर्जी रिलीज होती है एट ए टाइम कि पूरा जो अर्थ का सरफेस है वो शेक करने लगता है, हिलने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अर्थक्वेक बोलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है आपका, इनर कोर और आउटर कोर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आपके आउटर कोर में सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में है, सारे मेटल्स, सारे रॉक्स, चट्टाने सब लिक्विड फॉर्म में है। तो ये लिक्विड होने के कारण अब इनके ऊपर मेंटल और क्रस्ट है, तो ये क्या लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर ये स्लोली स्लोली मूव कर रही है। अगर ये मूव ही नहीं करती तो दो प्लेट्स आपस में टकराती भी नहीं, ना तो आपस में रब करती, ना तो दूर जाती, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, जिसकी वजह से इनकी क्या हो रही है, मेंटल, क्योंकि मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, इसलिए इसके लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ही इनमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। और मूवमेंट में कभी कभी ये प्लेट्स आपस में टकरा भी जाती हैं, या एक दूसरे को आमने सामने है तो टकरा गई, कोई प्लेट ऐसे हो गई दूसरे प्लेट पे चली गई, या कोई प्लेट नीचे हो गई ये ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसके रीजन से, और या कभी कभी ये एक दूसरे से थोड़ा दूर भी चली जाती हैं प्लेट्स। ये पूरा एक सिंगल प्लेट नहीं है कि पूरी जुड़ी हुई है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, और इस लिक्विड फॉर्म की वजह से ये इनमें मूवमेंट हो रही है। और इनर और आउटर कोर की वजह से ही आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। यही रीजन है अर्थक्वेक का। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग समझो इसमें, अब देखो, इट इज ऑल्सो गिवन इन द बुक, when tectonic plates collide with each other, when tectonic plates collide with each other, it causes trembling of the earth सरफेस। यही चीज मैंने अभी जस्ट आपको बताई। अगर ये आपस में टकरा जाती हैं, या आपस में रब करती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसी से जो सरफेस है इसमें बहुत तेज शेक होने लगता है, ठीक है। जब ऊपर का सरफेस
बहुत ज़्यादा शेक होगा, हिलने लगेगा, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। पहले ये समझ लो, द पॉइंट, नोट डाउन, द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ the point of origin of the earthquake, below the surface, of the earth is called it focus। ठीक है, द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द earthquake बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के नीचे, मतलब वो जो कोर है ना, आउटर इनर, आउटर कोर और मेंटल की मैंने बात की, तो अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा है क्या, वो क्रस्ट है, दैट इज द क्रस्ट। तो उसके नीचे जहां पे अर्थक्वेक ऑरिजिन का होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और एक्चुअली जहां पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और एक्चुअली जहां पे अर्थक्वेक आता है, जो उसे हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। ईपी सेंटर इस फोकस के ठीक ऊपर होता है अर्थ पे। इज इट क्लियर? एंड ईपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। ईपी सेंटर देखो, द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, ईपी सेंटर। जो मेन चीज है ये समझ लो, ईपी सेंटर क्या है। ईपी सेंटर इज द पॉइंट ईपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, EP center is the point on the earth surface directly above the focus। ये किसके ऊपर होता है, फोकस के, डायरेक्टली above the फोकस। ठीक है, जहां पे, ठीक है, द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब देखो, मैंने तुम लोग से बताया ना कि जो ये है आपका क्या है, जो अर्थक्वेक आने के रीजन क्या है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर इज द रीजन फॉर द अर्थक्वेक का यही रीजन है, आउटर और इनर कोर। ठीक है, तो आउटर और इनर कोर के यहाँ पे जहां पे अर्थक्वेक का सेंटर बनता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और ईपी सेंटर क्या है, ईपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, जहां पे ये फोकस पॉइंट नीचे बनेगा, अर्थ के नीचे, मतलब क्रस्ट वाली लेयर से नीचे। ठीक है, और ईपी सेंटर होगा क्रस्ट पे, ठीक डायरेक्टली अबव द फोकस। ईपी सेंटर कहां बनेगा, डायरेक्टली अबव द फोकस। तो ये हो गया बेटा। अब देखो, इट इज ए पॉइंट वेयर द अर्थ क्वेक बिगिंस। ये और ईपी सेंटर ही वो पॉइंट होगा जहां पे अर्थ क्वेक बिगिन स्टार्ट होगा, सबसे पहले जहां पे अर्थ का वो सरफेस, और जो फोकस के ऊपर ईपी सेंटर होता है
वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज मोस्ट नियर द ईपी सेंटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।